Children, today we are going to study a very special arrangement of resistance, a special circuit called Wheatstone bridge. In this circuit, four resistances are connected along the four arms of a parallelogram. Just observe. This bulb is representing R1, this bulb is representing R2, this is R3 bulb, and this is R4 bulb. Four halogen bulbs are used, and a fifth bulb is connected along the diagonal of this parallelogram. You can see the four bulbs along the four arms of the parallelogram, and along this diagonal we are connecting the battery. I will connect this with the switch, right? Now you can see that all five bulbs are connected with each other and the whole circuit is connected with the switch. But when I will switch on, only four bulbs will glow and the fifth bulb will not glow, because these all four bulbs are of equal wattage. That means they are representing equal resistances. Now Wheatstone bridge says that if R1 upon R2 is equal to R3 upon R4, then there will be no current in this diagonal arm, because potential difference of this point and potential of this point, potential difference nahi beta, potential of this point and potential of this point in that situation will be same and no current will flow through this fifth arm. Now here, since all the four bulbs are of same watt, so they are representing same resistances. So R1 upon R2 is equal to 1 and R3 upon R4 is also equal to 1. Therefore, potential of this point should be equal to potential of this point according to Wheatstone bridge. So there should be no current through this branch and then there should be no current through this bulb. Now when I switched on the circuit, you just observe the fifth bulb is not glowing because there is really no current through this branch. This is Wheatstone bridge, and today we are going to study this circuit. Now Wheatstone bridge is a circuit which is used to measure resistance lying between 1 ohm to 10 to the power 6 ohm, that is 1 mega ohm. In this circuit we have 5 resistances or 4 resistances arranged along the 4 sides of a parallelogram as we have seen. Now look at the circuit diagram. सबसे पहले हम ये नोट कर लें कि ये जो सर्किट अरेंजमेंट है ये एक अननोन रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है. इसमें 4 रेजिस्टेंसेस पैरेललोग्राम के 4 साइड्स के अलोंग अरेंज हैं. एक डायगोनल के अलोंग बैटरी है और दूसरे डायगोनल के अलोंग एक गैल्वेनोमीटर है जो इस ब्रांच में करंट की प्रेजेंस को चेक करता है. यहाँ पर 2 रेजिस्टेंसेस R1 और R2 ये नोन है और इनकी वैल्यू फिक्स रहती है. ये R3 रेजिस्टेंस वेरिएबल रेजिस्टेंस है और इसे हम वेरी करके व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस स्टेट तक पहुंचाते हैं. और R4 अननोन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हमें मेज़र करनी है. तो R1 और R2 को हम रेशियो आर्म्स कहते हैं और R3 को वेरिएबल आर्म कहते हैं. ठीक है, अब इसको कैसे सेट करते हैं देखो. इनिशियली जब हम स्विच ऑन करेंगे तो गैल्वेनोमीटर से कुछ करंट पास होगी और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा. उसके बाद हम R3 को वेरी करने लगते हैं. R3 को तब तक वेरी करते हैं जब तक गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ज़ीरो ना हो जाए, मतलब नीडल ज़ीरो पर ना हो जाए. इस पर्टिकुलर सिचुएशन में देखो सर्किट स्विच ऑफ नहीं है, रेजिस्टेंसेस में करंट फ्लो कर रहा है. केवल इस ब्रांच में करंट नहीं फ्लो करेगी जबकि इन दोनों साइड्स में करंट जा रही है, डिवाइड हो रही है यहाँ से चलकर करंट, और केवल इस ब्रांच में करंट नहीं बह रही है. ये जो स्टेट है गैल्वेनोमीटर की, इस स्टेट को कहते हैं नल डिफ्लेक्शन स्टेट. और इस स्टेट में
जितनी करंट R1 से फ्लो करती है वो सारी की सारी R2 से फ्लो कर जाती है, और जो भी करंट R3 से फ्लो कर रही है वो सारी की सारी R4 से फ्लो कर जाती है, क्योंकि इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है। और जब इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है तो हम कंक्लूड कर सकते हैं सेफली कि C का पोटेंशियल और D का पोटेंशियल इक्वल है। When potential of C is equal to potential of D, when there is no current through the galvanometer which is along the diagonal of this arrangement, then we say that Wheatstone is in balanced position. ये balanced position या state है Wheatstone bridge की, और Wheatstone bridge की balanced position में R1, R2, R3, R4 का क्या रिलेशन होता है, इससे हम डिराइव करेंगे, और वो जो रिलेशन मिलेगा उसको हम कहेंगे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन, और वो ही रिलेशन हमें इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। तो इससे पहले कि हम डेरिवेशन शुरू करें, हम ये देख लेते हैं कि जो करंट इस ब्रांच में गई उसने यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप किया I1 R1, और पूरी की पूरी करंट क्योंकि यहाँ से गई तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप किया I1 R2। तो A से C के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हुआ वो I1 R1 है, और C से B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ वो I1 R2 है। सिमिलरली A से D के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ वो I2 R3 है, और क्योंकि पूरी करंट R4 से फ्लो हो रही है तो D और B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ वो I2 R4 है। अब हम इस कंडीशन को लेकर कि बैलेंस्ड कंडीशन में C और D के बीच का पोटेंशियल सेम होता है, इस कंडीशन को लेकर हम लोग R1, R2, R3 और R4 के बीच एक रिलेशन डिराइव करने जा रहे हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने अभी डिस्कस किए हैं वो पॉइंट्स हमने यहाँ पे नोट कर लिए, और फिर हमने पेज को दो पार्ट में डिवाइड किया और कंडीशन VC इक्वल टू VD को दो तरीके से विजुलाइज किया। वी कैन राइट VA माइनस VC इज इक्वल टू VA माइनस VD। जस्ट एड VA both the sides. So VA minus VC is equal to I1 R1, and VA minus VD is equal to I2 R3. We have written it. Similarly, we can write VC is equal to VD. So VC minus VB is equal to VD minus VB. Just add VB on both sides. So VC minus VB, potential difference across this branch is I1 R2, and VD minus VB is potential difference across this branch, and that is I1 into I2 into R4. So we have written I1 R2 is equal to I2 R4. So from this equation we are getting I1 R1 is equal to I2 R3. From this equation we are getting I1 R2 is equal to I2 R4. Now divide these two equations. So when one is divided with 2, you can see that R1 upon R2 will be on the left hand side and R3 upon R4 will be on the right hand side. So the unknown resistance R4 can be written as R2 R3 divided by R1, and this is the way we get the unknown resistance value. So what is balanced Wheatstone bridge? When R1 upon R2 is equal to R3 upon R4 in the circuit we have seen, then there is no current through the galvanometer which is connected along the diagonal, one of the diagonal of the parallelogram, and the Wheatstone bridge is said to be balanced. So what is condition of balanced Wheatstone bridge? That R1 upon R2 is equal to these two ratio, the ratio of these two branch
is equal to ratio of these two branch resistances, and there is no current through the galvanometer which is connected along the one diagonal. Now here this is interesting that you can interchange the component of this diagonal with the component of this diagonal. You can connect galvanometer between A and B, and you can connect battery between C and D. There will be no change in the balance situation of the Wheatstone bridge. So this derivation is very, very important for your board exam, and we get some interesting circuit diagrams. Most of them are simple, but few we can solve by using this technique which I am going to explain you. Wheatstone bridge पर based ये बहुत popular question है. इसमें इस सर्किट में A और B के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, और 4R और 2R इन दोनों रेजिस्टेंसेस से करंट कैलकुलेट करनी है. तो इस तरह के सर्किट को जिसमें कि 5 रेजिस्टेंसेस दिख रहे हैं और ये समझ नहीं आ रहा है कि कौन से रेजिस्टेंसेस सीरीज़ में है और कौन से पैरेलल में, तो सबसे अच्छा और साइंटिफिक तरीका है कि जिन दो टर्मिनल्स के बीच आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, उन दोनों टर्मिनल्स को आप थोड़ा सा डिस्टेंस पर मार्क कर लें इस तरह से, A और B. उसके बाद आप देखो कि और कौन से जंक्शन सर्किट में दिख रहे हैं. ये जंक्शन सर्किट में दिख रहा था, और इसका अगर नाम ना हो तो आप इसको लेबल कर दो. जैसे यहाँ ये C है और यहाँ ये जंक्शन D है. अब इन दोनों जंक्शंस को आप इस AB लाइन के थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे इनके पॉइंट बना दो. तो AB लाइन के थोड़ा ऊपर मैंने C लिख दिया और पॉइंट बना दिया C का, और इसी तरह से थोड़ा नीचे D पॉइंट बना दिया. अब हम सिर्फ रेजिस्टेंसेस देखते जाएंगे कि किन पॉइंट्स के बीच कौन सा रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और वो इस सर्किट में कनेक्ट करते चले गए. जैसे आप यहाँ से शुरू करो, A से C के बीच में R कनेक्टेड है, तो A से C के बीच में देखो R कनेक्ट कर दिया. फिर C से D के बीच में 4R कनेक्टेड है, तो देखो मैंने C से D के बीच में 4R कनेक्ट कर दिया. इसके बाद D से B के बीच में 2R कनेक्टेड है, तो मैंने D से B के बीच में 2R कनेक्ट कर दिया. फिर C से B के बीच में R कनेक्टेड है, तो C से B के बीच में R कनेक्ट कर दिया. और अब एक रेजिस्टेंस और बचता है, A से D के बीच में 2R कनेक्टेड है, तो A से D के बीच में 2R कनेक्ट कर दिया और मार्क कर दिया कि इससे करंट कितनी फ्लो कर रही है, ये हमको कैलकुलेट करना है. अब हमारे सामने व्हीटस्टोन जैसा एक सर्किट अपीयर हो गया. हम चेक कर लें कि क्या ये बैलेंस है या नहीं. चेक करने के लिए R1/R2 चेक किया, इक्वल टू 1 है. R3/R4 चेक किया, ये भी इक्वल टू 1 है. मतलब R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4. तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है, मतलब C और D के बीच पोटेंशियल इक्वल है, और इसका मतलब कि इस डायगोनल में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा. तो अब इस रेजिस्टेंस को हम सर्किट से रिमूव कर देंगे, क्योंकि इसका कोई रोल सर्किट में नहीं है. तो सर्किट और भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारे सामने इस तरह से आ जाएगा. जब हमने सर्किट से 4R रिमूव कर दिया तो हमें क्लियर हो रहा है कि ये दो रेजिस्टेंसेस सीरीज़ में है, क्योंकि इनसे एक ही करंट फ्लो कर रही है, और ये दो रेजिस्टेंसेस भी सीरीज़ में हैं क्योंकि इनसे भी एक ही करंट फ्लो कर रही है. तो 2R, R प्लस R 2R यहाँ लिख दिया, 2R प्लस 2R 4R यहाँ लिख दिया. तो अगर A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो वो हो गया 2R इंटू 4R अपॉन 2R प्लस 4R, और ये वैल्यू आ जाएगी 8/6R यानी 4R/3. तो एक आंसर तो ये हो गया कि A और B के बीच में ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है. इसके बाद
इस वाली ब्रांच से करंट पूछी थी और 4R से करंट पूछी थी, तो 4R से तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, वो आंसर हमको काफ़ी पहले मिल चुका है। हम इसको मेंशन कर देंगे कि I फ्रॉम 4R इज़ 0, करंट फ्रॉम 4R रेजिस्टेंस इज़ 0। ये हमारा आंसर नंबर 2 हो गया। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, वो हमारा आंसर नंबर 1 हो गया। तो ये हमारा आंसर नंबर 1 है। अब 4R से मतलब 2R से कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो देखो इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 12 वोल्ट है। तो जो करंट इस ब्रांच में फ्लो करेगी वो सिंपली 12 वोल्ट को इन दोनों का जो सम है 2R प्लस 2R 4R से डिवाइड करो 12 वोल्ट को, तो हमें इस ब्रांच से करंट मिल जाएगी और जो इस ब्रांच में फ्लो कर रही है वही 2R से फ्लो कर रही है। तो 12 वोल्ट अपॉन 4R दैट इज 3/R, ये करंट फ्लो कर रही है 2R रेजिस्टेंस से। तो इस तरीके से व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल से हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाले क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो सिंप्लीफिकेशन टेक्निक है ये ज़रूर मैं चाहूँगी कि तुम लोग ध्यान से देख कर इसे सीखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज का काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये फॉर्मेट जो ये अरेंजमेंट है ये बहुत फेमस है। इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 4 वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B एज शोन। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क अक्रॉस द पॉइंट A एंड B एंड द करंट इन द आर्म FCE एंड FDE। तो चलो देखते हैं कि A और B कहाँ है। ये A और B है, इसके बीच 4 वोल्ट अप्लाइड है और A और B के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इसके अलावा जो करंट निकालनी है वो FCE यानी इस ब्रांच से निकालनी है और FDE ये इस ब्रांच से निकालनी है। तो सबसे पहला काम है सिंप्लीफाई करना। तो जिन दो पॉइंट्स के बीच इक्विवेलेंट निकालना है उन दोनों पॉइंट्स को हम थोड़ा सा दूरी पर लिख कर पॉइंट्स बनाकर उन्हें AB लोकेट कर देंगे। तो अब सर्किट को एक बार ध्यान से देखेंगे और फिर उन दो पॉइंट्स को एक दूसरे से थोड़ा दूर पे बना दें जिनके बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। यहाँ पे देखो जो A पॉइंट है एक्चुअली वो F पॉइंट और A पॉइंट कनेक्टिंग वायर से जुड़ा है, तो इलेक्ट्रिकली ये भी A ही पॉइंट है। सिमिलरली B पॉइंट ही है, तो हमने इसको AB पॉइंट ले लिया और अब AB पॉइंट को थोड़ी दूर पे बनाकर और जंक्शन कितने हैं वो देखते हैं। एक C जंक्शन है और एक D जंक्शन है, तो AB लाइन से थोड़ा ऊपर C जंक्शन बना देते हैं और थोड़ा नीचे D जंक्शन बना देते हैं। अब जो रेजिस्टेंस जहाँ कनेक्टेड है जिन दो पॉइंट्स के बीच वो कनेक्ट करते चले जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं A से C के बीच 4 ओम कनेक्टेड है, तो ये हमने A से C के बीच 4 ओम कनेक्ट कर दिया। इसी तरह से C से B के बीच में 4 ओम कनेक्टेड है, तो C से B के बीच में भी 4 ओम कनेक्ट कर दिया। अब देखो D से B के बीच में 4 ओम कनेक्टेड है और C से D के बीच में 4 ओम कनेक्टेड है। इसके अलावा A से D के बीच में भी 4 ओम कनेक्टेड है। तो सर्किट हमारा सिंप्लीफाई हो गया। 1 2 3 4 5 ऑल 5 रेजिस्टेंसेज आर अरेंज्ड। A से B के बीच में क्योंकि उन्होंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने को कहा है,
और ए से बी के बीच में जो बैटरी कनेक्टेड है वो 4 वोल्ट की है, तो हम 4 वोल्ट की बैटरी को ए से बी के बीच में कनेक्ट कर देते हैं। तो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो सिंपली ये 4 ओम आप हटा दोगे, क्योंकि सी और डी के पोटेंशियल सेम होंगे, क्योंकि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये भी 4 ओम ही है, रेजिस्टेंसेस सारे बराबर हैं। तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। सी और डी के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगी। तो आपका इसका फर्दर सिंप्लीफाइड सर्किट हो गया। तो अब ये देखो, ये फर्दर सिंप्लीफाइड सर्किट हो गया, 4 ओम रेजिस्टेंस निकाल दिया। तो ये सीरीज़ में, ये सीरीज़ में, और ये आपस में पैरेलल में, तो ये 8 ओम, ये 8 ओम, इनका इक्विवेलेंट 1 अपॉन 4 ओम, 1 अपॉन 8 ओम प्लस 1 अपॉन 8 ओम इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट से निकलेगा। और कैलकुलेट करके देखोगे तो जो आर इक्विवेलेंट आएगा दैट विल बी 8 ओम इंटू 8 ओम अपॉन 8 प्लस 8, और ये तुम्हारा आ जाएगा 4 ओम। तो आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी इज 4 ओम। इसके बाद उन्होंने कहा है एफ सी ई। तो चलो देखते हैं, ये एफ थी, एफ सी और ई, इस ब्रांच से कौन सा कितनी करंट फ्लो कर रही है। तो एफ मतलब ए, सी और ई मतलब बी। तो इस ब्रांच से जो करंट फ्लो कर रही है वो सिंपली आपको मिल जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस ब्रांच इज 4 वोल्ट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन दिस ब्रांच इज, इन दिस ब्रांच इज 4 + 4 8 ओम। तो हम इससे जो करंट फ्लो कर रही है I1 वो कैलकुलेट कर लेंगे, 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई 8 ओम, that is 1/2 एम्पियर। सिमिलरली 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और एफ डी ई इस ब्रांच से मतलब एफ का मतलब ए, फिर डी और फिर बी मतलब ई, इस ब्रांच से जो करंट फ्लो करेगी वो भी सेम हो जाएगी। I2 इज 4 वोल्ट डिवाइडेड बाई ये रेजिस्टेंस का सम 8 ओम, दैट इज 1/2 एम्पियर। तो इससे भी हाफ एम्पियर करंट फ्लो करेगी और इससे भी हाफ एम्पियर करंट फ्लो करेगी। तो क्वेश्चन को नोट करके और सारे स्टेप्स को प्रॉपरली नोट करने से हम इन्हें ठीक से रिवाइज करने के लिए कंटेंट प्रिपेयर रख सकते हैं।